مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو سسٹر شمیم عنایت کی طرف سے سلام۔ ابھی ہم آج کی انجیل مقدس سنیں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 21 باب 15 سے 19 آیات مقدسہ۔ اور جب وہ ناشتہ کر چکے تو یسوع نے شمعون سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو ان سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے بڑے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے کہا، اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ ہاں اے خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری چھوٹی بھیڑوں کی غلبانی کر۔ اس نے سہ بارہ اس سے کہا کہ اے شمعون بریونا، کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ تب پطرس دلگیر ہوا، اس لیے کہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کہ کیا تو مجھے پیار کرتا ہے؟ اور اس نے کہا کہ اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے پیار کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تو جوان تھا تو آپ اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں کہیں چاہتا تھا جاتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا اور دوسرا تیری کمر باندھے گا اور وہاں لے جائے گا جہاں تو نہ چاہے۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ مسیح کی سلامتی تمام سننے والوں کے ساتھ ہو۔ میں سسٹر شکیلہ ہرمس آپ سب کو صبح کا سلام پیش کرتی ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم پڑھتے ہیں کہ حالات اور واقعات کیسے اکٹھے ہو رہے ہیں جو مقدس پالوس کو روم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ خدا کے پاس بہت سارے ذریعے اور طریقے ہیں لوگوں کو اپنے پاس بلانے یا حاصل کرنے کے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ وہی بنے اور وہی کرے جو خدا ان سے کروانا چاہتا ہے۔ اسی طرح یروشلم کے حالات ہیں۔ مقدس پالوس کی رومی شہریت اور دیگر واقعات پالوس کے روم بھیجے جانے کے ذرائع فراہم کرتے ہیں، وہ جگہ جہاں خدا اسے انجیل کے مسلسل پھیلاؤ کے لیے استعمال کرے گا۔ اور آج کی انجیل مقدس پطرس کے بارے میں بتاتی ہے جو بالآخر روم میں ختم ہو جائے گا۔ یہ حوالہ مقدس پطرس اور شاگردوں کے ساتھ جھوٹے یسوع کے زمینی وقت کے اختتام کے قریب ہوتا ہے۔ یسوع مسیح پطرس سے اپنی محبت کے بارے میں پوچھتا ہے جو وہ یسوع کے لیے رکھتا ہے، اور پطرس کے لیے اس محبت کا مطلب کیا ہے پوچھتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس کے اقتباس کی کئی طریقوں سے تشریح کی گئی ہے۔ ایک طریقہ ان اصطلاحات کے حوالے سے استعمال ہونے والے الفاظ کو دیکھتا ہے جن کا ترجمہ انگریزی لفظ لو اور اردو میں محبت یا پیار سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے اسکالرز کا کہنا ہے کہ محبت کے لیے دو مختلف یونانی الفاظ استعمال کیے جانے کے طریقے میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے علماء اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ کون سا لفظ کس وقت اور کس کے ذریعے استعمال ہوتا ہے۔ میرے خیال میں کہ یہ الفاظ خاص طور پر خدا یسوع مسیح کے ساتھ مقدس پطرس کے تعلقات کو مضبوط رکھنے یا اس رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے چنے گئے ہیں جو مقدس پطرس یسوع سے رکھتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں
यूनानी के दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, फ़िलो लव और उर्दू में जिसका तर्जुमा है प्यार, और दूसरा लफ्ज़ अगापे जिसका मतलब भी लव या प्यार है। पहला लफ्ज़ जो यूनानी में इस्तेमाल किया गया है वो फ़िलो है, जिसका मतलब है कि प्यार, और ये प्यार अपने किसी अज़ीज़, भाई बहनों, ख़ानदान के अफराद, दोस्तों से होता है। इसकी एक शक्ल बरादराना मोहब्बत है जो कि बहुत अहम किस्म है। ये मोहब्बत की वो किस्म है जो ख़ानदान के अफराद एक दूसरे के लिए रखते हैं और ये एक एहसास से आती है। मोहब्बत का दूसरा लफ्ज़ जो आज की अंजील में इस्तेमाल होता है वो है अगापे। इसका तर्जुमा अक्सर गैर मशरूत मोहब्बत के तौर पर किया जाता है। मोहब्बत की एक खूबसूरत तस्वीर इस आयत में मरकूज़ है। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 7 आयत। ऐ प्यारो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा से है, और जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को पहचानता है। खुदा मोहब्बत है। ये मोहब्बत की आला तरीन शक्ल है। ये मोहब्बत की वो किस्म है जो यीशु कहते हैं कि आसमानी बाप हमारे लिए रखते हैं। ये वो मोहब्बत है जिसकी वजह से यीशु पैदा हुआ, खिदमत की, दुख उठाया, मारा गया, दोबारा मुर्दों में से जी उठा। ये वो मोहब्बत है जो बदले में किसी चीज़ की भी तवक्को नहीं रखती। ये मोहब्बत की वो किस्म है जिसके बारे में यीशु कहता है, इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। यूनानी में फ़िलो और अगापे जिसका तर्जुमा मोहब्बत या प्यार है। आइए देखते हैं कि आज की इंजील मुक़द्दस में इनका इस्तेमाल कैसे किया गया है। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयूना, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ए खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। इस आयत में शमौन पतरस एक ख़ानदान के रुकन या करीबी दोस्त के तौर पर यीशु को कहता है कि मैं प्यार करता हूँ। यीशु मसीह गैर मशरूत मोहब्बत रखते हुए पतरस से ये सवाल करता है कि पतरस एक दोस्त की तरह जवाब देता है कि मैं प्यार करता हूँ। यीशु ने दूसरी बार सवाल दोहराया, पतरस क्या तुम मुझसे गैर मशरूत मोहब्बत करते हो? पतरस ने दोबारा जवाब दिया, हाँ ए खुदावन, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। एक बार फिर पतरस एक ख़ानदान के फ़र्द के तौर पर प्यार का इजहार करता है और यीशु उसे कहता है कि तू मेरी छोटी भीड़ों की गलाबानी कर। तीसरी बार यीशु फिर सवाल करता है, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? यकीनन पतरस को दिली चोट लग रही है। इसे 3 सवाल पूछे गए हैं। वो जवाब देता है, खुदावन तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं तुझे ख़ानदान के रुकन, करीबी दोस्त के तौर पर प्यार करता हूँ। यीशु आखिरी और लाजमी अमर देता है कि तू मेरी भेड़ें चरा। मोहब्बत के अल्फाज को ख़ास तौर पर और इनके ख़ास मानी के लिए चुना गया है। आज की ये इबारत एक दिलचस्प मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जो हम पर लागू हो सकता है। यीशु मसीह पतरस से गैर मशरूत मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए कह रहा है, लेकिन पतरस अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर सिर्फ़ करीबी रिश्तेदार या दोस्त की मोहब्बत से ही जवाब दे देता है। पतरस दूसरों के लिए अपनी जान देने का मुकम्मल अहद नहीं कर सकता। यीशु मसीह एक बार फिर बेलौस
मोहब्बत के एक अमल में पतरस की तरफ से मुकम्मल हथियार डालने का मुतालबा करता है। पतरस एक बार फिर मोहब्बत की वाहद किस्म के साथ जवाब देता है जिसका वो अपनी ज़िंदगी के इस मकाम पर वादा कर सकता है। यसु आखिरकार पतरस से मोहब्बत की दूसरी किस्म के लिए कहता है। पतरस को न सिर्फ यसु के सवाल करने से बल्कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर यसु के हवाले करने के काबिल ना होने की वजह से तकलीफ़ होती है। पतरस के हर जवाब के बाद यसु मसीह पतरस को बड़े चुराने, छोटी भेड़ों की गलाबानी करने और भेड़ें चुराने की जिम्मेदारी देता है और फिर पतरस बेलौस मोहब्बत के साथ अपनी जान यसु के लिए देने को तैयार हो जाता है। साइमिन, हम भी अपने अंदर गैर मशरूत या बेलौस मोहब्बत के एहसास को गहरा कर सकते हैं जैसे पतरस ने किया। हमारी ज़ेर निगरानी भी यसु ने अपनी भेड़ों को अपने गले को किया है। हम भी इनकी देखभाल कर सकते हैं एक अच्छे चरवाहे की तरह जैसे पतरस ने किया। बेलौस मोहब्बत में तब्दील होना, दूसरों की खिदमत में पतरस ने अपने आप को पेश किया। पतरस ने सीखा कि किस तरह खुदा यसु और उसके ज़ेर निगरानी दूसरों से गैर मशरूत मोहब्बत करना है। आए हम सोचें कि मैं अपने ख़ानदान और दोस्तों से किस किस्म की मोहब्बत करता या करती हूँ, या अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द या किसी ऐसे फ़र्द के लिए जिसके साथ मैं काम करता या करती हूँ, जिसके साथ मेरा राब्ता हुआ है, मैंने गैर मशरूत मोहब्बत का मुज़ाहरा किया है। आए हम अपनी ज़िंदगियों में यसु की मोहब्बत को पहचानें और बेलौस मोहब्बत का इजहार यसु के साथ करें। आमीन।